Today we'll discuss about this difference of transcription in prokaryotes and eukaryotes. The first difference is the location of transcription process in prokaryote and eukaryote. The prokaryotic cell lack the well-developed, well-defined nucleus. Therefore, their transcription process is taking place in the cytoplasm. As soon as the transcription is transcription is taking place, it is followed by the translation because the transcription in cytoplasm it directly bind with the transcript of the transcription process directly binds with the ribosome for the synthesis of protein. Okay, so प्रोकैरियोट जो होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म के भीतर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और जैसे ही आरएनए प्रोड्यूस होता है मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा वह डायरेक्टली यस वह डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व कर दिया जाता है और पार्टिसिपेट होता है मगर यूकैरियोटिक जो सेल होती है इट इज वेल डिफाइंड इट हैज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड this well defined nucleus inside the nucleus the transcription is carried out and formation of the messenger RNA is taking place from the DNA double stranded DNA. Then this messenger RNA it has to pass through the small nuclear pore present on the nucleus, okay, nuclear surface, okay, for performing the translation process, for performing the protein synthesis process from the codon present on messenger RNA. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद जो मैसेंजर आरएनए होता है वह न्यूक्लियस से न्यूक्लियोपोर के द्वारा बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है और क्यों बाहर कर दिया जाता है क्योंकि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस करने वाली जो एंजाइम्स है फैक्टर्स है इनिशिएशन ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर जो है वह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसलिए मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में इंटर होना होता है ओके नो डाउट the transcription of RNA in eukaryote it is taking place in nucleus while transcription process okay the transcription of the DNA to form RNA in prokaryote it is taking place inside the cytoplasm. Now this is the difference of the location where does the transcription process is taking place. Then second main important difference as you know that the product of the transcription is the messenger RNA, especially the messenger RNA we are concerning here with. So in both the cases, prokaryotes and eukaryote, the product of the gene after transcription is the primary messenger RNA. The messenger RNA of prokaryotes, it lacks the intron sequences. It lacks the non-coding sequences like the eukaryote. The eukaryotic messenger RNA, it continuously contains the coding sequence that is codon. Then these two coding sequences are interrupted by the non-coding sequences that is known as the introns. These exons, they are interrupted with the non-coding sequences that is the introns. It is the characteristic of यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट के जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उनके जो एक्सॉन होते हैं जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो इंटरप्ट होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस के द्वारा दैट इज इंट्रॉन के द्वारा दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ओके सो presence of intron non-coding sequences it is the important characteristic of eukaryote. The size of the genomic size of the eukaryote is very much higher as compared to the prokaryotes and the high molecular weight or the large size genome it contains more parts than the coding non-coding parts than the coding sequences. इसमें कहीं ज्यादा मोर देन 90% नियर अबाउट 98% जो पोर्शन है वो नॉन कोडिंग वाला होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. Then the messenger RNA of eukaryote it contain exon and intron. This exon is the encoding sequences that contain the triplet codon for protein synthesis, while the introns are the non-coding sequences that are going to remove by the process of splicing that we are going to study later. Then intron, these are the non-coding sequences that interrupt between the coding sequences that is the exon.
ये एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंसर है जिनके कारण प्रोटीन सिंथेसिस के ट्रिपलेट कोडॉन जो होते हैं वो एक्सॉन पर प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता है, वह नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उसे रिमूव कर दिया जाता है। सो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं, इस बात को याद रखना है। देन थर्ड वन, सी if we compare the genome of prokaryotes and eukaryotic genome size is very much higher. Okay, such a bigger size of the genome, it contain only 30% of the gene, and out of this only 1.5% is the exon part, that is the coding part, that is the part which is going to be used in the protein synthesis, enzyme synthesis. Then what is the remaining part present in the genome of eukaryote? So बचा हुआ part eukaryotes में क्या होता है? Now this is the long interspersed elements, that is the line. Now the transposomes, then genes, and the miscellaneous. These are the different types of the we can say the sequences present in eukaryotic genome. उसमें से जो ट्रांसपोसोम्स होते हैं जिसे हम जंपिंग जीन्स कहते हैं, क्या कहते हैं? जंपिंग जीन्स। ओके, जो ह्यूमन है या फिर हायर यूकैरियोट्स हैं, उनके जो जीनोम होता है उनमें कंटिन्यूअसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवोल्यूशन होता जा रहा है, और उनके जो नॉन कोडिंग रीजन है उनमें डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन, ऐसी चीजें होती रहती है कंटिन्यूअसली, यह जारी है। सो ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं? ट्रांसपोसोम्स, दीज आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दैट transfer from the one DNA or one chromosome to the another chromosome, उसे हम ट्रांसपोसोम्स कहते हैं। ट्रांसपोसोम का साइज इट मे बी वेरी मच लॉन्गर, मे बी इन kilo base pair or maybe shorter like few base pairs. Now the long interspersed element, they are about 21%, then short interspersed elements of the transposome, they are only 13%. And such, and some interspersed sequences or transposon sequences, they are looks like the retroviruses. Their sequence match with the retrovirus sequences, that is 8%. Then in the miscellaneous part we can see the SSR. SSR क्या होता है? SSR, short sequence repeats. Short sequence repeats that constitute about 3%. You might be heard about the satellite DNA. आपने satellite DNA के बारे में सुना है। ओके, सैटेलाइट क्रोमोसोम आपने सुना है। सो सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये एक तरह का नॉन कोडिंग सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। ओके, जो जब हम टोटल डीएनए आइसोलेट करते हैं तब उस समय ये जो हाईली कंडेंस पोर्शन होता है जो किसी भी तरह का जीन एक्सप्रेशन नहीं शो करता, वह अलग से वह दैट इज द वी कैन से द ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम प्रोसेस करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब प्रोसेस करते हैं, उस समय ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसके सीक्वेंस की वजह से यह यह ब्रेक होकर अलग से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ये सेपरेट हो जाता है, तो इसीलिए उसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ओके, isn't it? So it is about इसे ये किस क्वालिटी में, किस कैटेगरी में आता है? ये आता है शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट्स। ये आता है शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट। कई सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस है। ओके, अलो सीक्वेंसेस, अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। ओके, अलो सीक्वेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन जीनोम में। अलो जो सीक्वेंस होता है, अलो अलो व्हाट इज दिस? अलो अलो मींस अर्थ्रोबैक्टर अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। ये एक बैक्टीरिया है, ओके, जो इनकोड करता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसका सीक्वेंस होता है AGCT। ये जो सीक्वेंस है AGCT, इट इज फाउंड मिलियंस ऑफ टाइम रिपीटेड इन ह्यूमन जीनोम। ओके, दिस allo genome, this allo sequence, that is allo for Arthrobacter luteus, इस बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पाया जाता है। वो क्या होता है वो आगे हम बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस में एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम अलो कहते हैं, अलो। ओके, और ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इस जी और सी के बीच में से ब्रेकिंग करता है डीएनए की, जी और सी के बीच में से।
तो इसे हम एलो कहते हैं, ठीक है। और उसका सीक्वेंस होता है AGCT, जो हमारे ह्यूमन जीनोम में कई मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। ह्यूमन जीनोम में एलो सीक्वेंस जो है वह सबसे ज्यादा नॉन कोडिंग मिलियंस ऑफ टाइम रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, मींस इस तरह का हमारा जो जीनोम है उसमें कई सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ओनली 1.5% ही जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे जो है वह नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये कैसे फॉर्म हुए हैं? ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन डुप्लीकेशन, दैट इज द क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशंस, साथ ही साथ जीन म्यूटेशन के द्वारा ये सारी चीजें फॉर्म हुई हैं। ओके, देन next one is the 30% of the gene that constitute the intron and exon. Okay, introns and exon. Okay, इसमें से exon part only 1.5% होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, while बचा हुआ जो 28.5% है वह इंट्रॉन होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो रिमूव कर दिए जाते हैं मैसेंजर आरएनए में से। उसी को हमें आज डिस्कस करना होगा। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम देखते हैं बीटा सब यूनिट हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन इज कंसिस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट। इसमें से बीटा सब यूनिट जो होता है उसमें देखिए आपको नजर आएगा कि ए, व्हाट इज दिस, ए स्टैंड्स फॉर ए एंड बी, दीज आर द इंट्रॉन, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है जिसकी लेंथ कोडिंग सीक्वेंसेस से कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ ओवल, दैट इज ओवल एल्बुमिन, इसमें भी अगर आप देखते हैं तो ABCDEFG ये भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, दैट इज इंट्रॉन है। इनका भी साइज एक्सॉन के कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा है। सो ह्यूमन जीनोम हो या कोई भी यूकैरियोटिक जीनोम हो, उनमें इंट्रॉन सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, रिपीटेड सीक्वेंसेस कहीं ज्यादा तादाद में है किसी भी प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस के। इसे याद रखना है आप। Okay, now then second important difference is the three different types of RNA polymerase participates in the transcription of or the production of transfer RNA, messenger RNA, and that is the ribosomal RNA. While in prokaryotes only one type of RNA polymerase synthesize all types of RNA, that is messenger RNA, transfer RNA, as well as ribosomal RNA. यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इट सिंथेसाइज द राइबोसोमल आरएनए like 28S, 18S, 5.8S. These are the small subunit of the ribosomal RNA that is synthesized by the RNA polymerase first. RNA polymerase second, it produces the different types of the messenger RNA. उस मैसेंजर आरएनए को हम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं क्योंकि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं। एक्सॉन ये इंट्रॉन के द्वारा स्प्लिट किए जाते हैं, इसीलिए हम यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को स्प्लिट जीन कहेंगे। यूकैरियोटिक जीन को हम स्प्लिट जीन्स कहते हैं क्योंकि उनके एक्सॉन के बीच में नॉन कोडिंग इंट्रॉन इंटरस्पर्स होते हैं, इसी वजह से हम उसे स्प्लिट जीन कहते हैं। साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस द SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसे हम स्नर्प भी कहते हैं। देन नेक्स्ट वन, पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज द ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए सब यूनिट 5S। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे आपने याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट वन डिफरेंस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? ये क्या होता है? आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद, जैसे कि हमने आपको बताया, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज द प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, इट कंटेन इट कंटेन एक्सॉन एंड इंट्रॉन सीक्वेंसेस। इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, यानी कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, इसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इस मैसेंजर आरएनए को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं।
देन अब ये जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ है, ये कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है? इट इज प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के भीतर प्रोड्यूस हुआ है। और न्यूक्लियस से बाहर आकर इसे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अब क्या करना होगा? ये जो मैसेंजर आरएनए है, यह इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अगर आता है तब इसका डैमेज हो सकता है। इसके दो डिफरेंट एंड्स होंगे, 5' एंड एंड 3' एंड। और इस एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स जो होते हैं, द राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम दैट में ब्रेक डाउन द एंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के एंड्स को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या कर सकते हैं? दे में ब्रेक डाउन द मैसेंजर आरएनए। सो इस वजह से इस राइबोसोम्स के जो एंड्स होते हैं, इस एंड्स को प्रोटेक्शन करवाना जरूरी होता है। ओके, क्योंकि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है, और उससे ट्रांसक्रिप्शन जो उससे ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो की जाती है वह साइटोप्लाज्म में होता है। और इतनी देर तक इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन में रखना जरूरी होता है, वरना राइबोन्यूक्लियेज ये जो एंजाइम है वह इस मैसेंजर आरएनए को ब्रेक डाउन कर देगा। ओके, सो इस ब्रेक डाउन को रोकने के लिए ये जो मैसेंजर आरएनए है, इट अंडरगो द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट मींस लेटर, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और लेटर, ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, okay, after RNA synthesis, modification, which type of modification occur in messenger RNA, like capping, polyadenylation and splicing. These are the three post-transcription modification process taking place after the transcription process. Okay. इस बात को आपने याद रखना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन देते हैं, जो इस मैसेंजर आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं, 5' और 3' एंड को, ताकि आफ्टर सिंथेसिस ये साइटोप्लाज्म में प्रोटेक्टेड मींस आसानी से पहुंच सके, ओके, इंटैक्ट पहुंच सके, और उससे फिर आगे की प्रोसीजर दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। सो सबसे पहली प्रोसेस कैपिंग। कैपिंग क्या होती है? द 5' एंड of the messenger RNA, it is added with one or few modified nucleotides of 7-methyl guanosine. जो 7-methyl guanosine होता है, it is added at the 5' end. ये 5-methyl guanosine जो होता है वह 5' एंड पर ऐड किया जाता है, दैट इज 7-methyl guanosine। इसे याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड दैट इज 7-methyl guanosine, इसके N7 एंड पर मिथिल बाइंड होता है, और ये 5' एंड पर इसकी चेन ऐड होती है जो इसे 5' एंड पर प्रोटेक्ट करती है। इसे 5' कैप कहेंगे, और ये कैप 7-methyl guanosine की होती है। यहाँ आपके बुक में जो ये जो 5 लिखा है, ये 5' एन लिखा है, ना कि पोजीशन ऑफ 7-methyl guanosine। ओके, it is not 5-methyl guanosine, it is 7-methyl guanosine. This 5 indicate this 5' it is the 5' end of messenger RNA, not the methyl guanosine position। मिथिल गोनोसिन क्या होता है? 7-methyl guanosine होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो, सो इस तरह से कैप ऐड की जाती है, देन इसे कहते हैं कैपिंग। देन आफ्टर कैपिंग, आफ्टर कैपिंग, कैपिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है पॉलीएडेनिलेशन और स्प्लाइसिंग, ये कैसे होता है उसे डिस्कस करना होगा। जैसे कि हमने आपको बताया ये जो
ये जो मैसेंजर आरएनए है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो फॉर्म होता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन ये रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन आर कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन्स आर इंटरस्पर्स सीक्वेंसेस व्हिच आर नॉन कोडिंग वन, एंड दीज इंट्रॉन सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस मस्ट हैव टू बी रिमूव। ठीक है, उसे रिमूव करना जरूरी होता है। ठीक है, सो ये जो स्प्लाइसिंग है, पॉली एडेनिलेशन और कैपिंग जो प्रोसेस है, ये न्यूक्लियस के भीतर ही होती है। ओके, और एडिशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एडेनिलेटेड टेल और स्प्लाइसिंग ऑफ द इंट्रॉन, ओके, ये इंटरचेंजेबली किसी भी समय पर हो सकता है। ओके, देन नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, दो एक्सॉन के बीच में जो इंट्रॉन जो प्रेजेंट होता है, उस इंट्रॉन को सीयर उस इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए स्प्लाइसियोसोम नाम का राइबोजाइम, स्प्लाइसियोसोम, इट इज द राइबोजाइम, स्प्लाइसियोसोम नाम का जो राइबोजाइम है, इट क्लीव द इंट्रॉन, इट रिमूव द इंट्रॉन सीक्वेंसेस बाय ब्रेकिंग इट फ्रॉम ए एंड जी। ए और जी से ये ब्रेक कर कर स्प्लाइसियोसोम जो एंजाइम है, जो राइबोजाइम है एक तरह का, ओके, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम, वो इस इंट्रॉन को रिमूव करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2016 में इसका सवाल था, याद रखो, 18 में भी था। ओके, कई बार ये रिपीट हुआ है सवाल। ओके, सो ये स्प्लाइसियोसोम इस इंट्रॉन को रिमूव करता है और फिर ये यस यू के साथ यू से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करवा देता है। ओके, सो इस तरह से जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है गोनोसिन का, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए, ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए ये पोजीशन होती है ए जी के साथ मिलकर, ये इंट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं स्प्लाइसियोसोम्स के द्वारा। ओके, देन सीयर, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इस फॉस्फेट के साथ डाई ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करवा दिए जाते हैं। और देखिए आपको नजर आ रहा होगा ए और जी वाला किस तरह से इंट्रॉन रिमूव कर दिया गया है। और आफ्टर दिस ग्रीन ग्रीन पोर्शन दैट इज द एक्सॉन, दे गेट ligated or binding with each other by the formation of phosphodiester bond। इस तरह से एक्सॉन रिमूव कर दिए जाते हैं, एक्सॉन को बाइंडिंग कर दिया जाता है और इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। व्हाट इज मीन बाय स्प्लाइसिंग? द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग intron sequences from primary transcript or from messenger RNA is called splicing। उसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। और उसे रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचता है, लाइगेटेड पार्ट, वो सारा का सारा पोर्शन कहलाता है, दैट इज एक्सॉन। ये कंप्लीट पार्ट एक्सॉन है। एज वेल एज द 200 to 300 adenylated sequence is added at the 3' end. Now it is called as the polyadenylated tail. Now 5' cap, then 3' polyadenylated sequence, and removal of splicing and binding of the exon with each other. Now it formed the complete mature messenger RNA. After transcription, the primary transcript, that is the primary messenger RNA of eukaryote, it undergo post-transcriptional modification by the process of capping, polyadenylation tailing, and splicing process. So ये था बच्चों आज का टॉपिक, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोटिक प्राइमरी ट्रांसफर प्राइमरी मैसेंजर आरएनए।